Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study short story number 10, A Mild Attack of Locusts by Doris Lessing. First of all, we'll go to study the introduction of the writer and the story. About writer, Doris Lessing was a British Zimbabwean novelist. کہ یہ پیدائشی طور پر برطانوی تھی، لیکن جو اس کے والدین تھے وہ ایران میں رہتے تھے اور اس کے بعد اس نے باقی ماندہ زندگی وہ زمبابوے میں گزاری. اس لحاظ سے اس کو برٹش زمبابوین ناولسٹ کہا جاتا ہے. Her most of the stories and novels are based on reality. She was awarded Nobel Prize in Literature in 2007. کہ اس نے ابتدائی عمر سے ہی کہانیاں لکھنا شروع کی تھیں اور اس کے زیادہ تر ناولز اور جو شارٹ سٹوریز تھیں وہ حقیقت پر مبنی ہوا کرتی تھیں. جو موجودہ لیسن ہے A Mild Attack of Locusts، یہ بھی حقیقی زندگی کی عکاسی کرتا ہے. She stood fifth in the list of the 50 greatest British writers since 1945. 1945 سے لے کر اس کی وفات تک جو ایک فہرست بنی تھی گریٹسٹ رائٹرز کی، اس فہرست میں اس کا 5واں نام آتا ہے. تھیم آف دا اسٹوری، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے کہ لوکسٹس زمبابوے میں جو موجود کسان ہیں ان کی فصلوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور ساری فصلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. تو یہی اس کہانی کا بنیادی تھیم ہے. The story is based on a real life calamity in the form of locusts. Calamity ایک قدرتی آفت کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹڈیاں جن کو ٹڈی دل کہا جاتا ہے، یہ لوکسٹس گروہوں کی شکل میں حملہ کرتی ہیں اور ہر قسم کا سبزہ، فصلیں، درخت، تمام چیزیں یہ کھا جاتی ہیں. The writer shows how damaging are the locusts in real life. The farmers did their best to save the crops, but all in vain. کسان جو ان کو تمام تر طریقے آتے تھے ان ٹڈی دل کو بھگانے کے، وہ تمام طریقے ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ ساری کے ساری ٹڈیاں یہ ان فصلوں کو کھا جاتی ہیں. However, they did not take the loss to their hearts and remained calm. They endured what they could not cure. اور ان کسانوں نے اس چیز کو برداشت کیا جس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. تو یہ تھا بنیادی طور پر تھیم اس کہانی کا. اب ہم اس کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ کے لیے نیکسٹ بورڈ پر چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کہانی کے جو بنیادی کردار، جیسے کہ اس میں مارگریٹ ایک خاتون ہے، وہ ڈورس لیسنگ جو اس کہانی کی مصنفہ ہے بذات خود پلے کر رہی ہے اور اس میں اس کا ریئل لائف ہسبینڈ وہ بھی اور اس کا سسر دونوں موجود ہیں. اور یہ کہانی زمبابوے میں جو موجود کھیت تھے جو ڈورس لیسنگ جو مصنفہ اس کے خاوند کے تھے اور حقیقی معنوں میں اس پر ان لوکسٹس نے حملہ کیا تھا. تو یہ تمام تر چیزیں اس کہانی میں پیش کی گئی ہیں. دوسری اہم بات اس کہانی میں یہ ہے کہ چونکہ یہ مارگریٹ یعنی ڈورس لیسنگ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا زندگی میں ان لوکسٹس کو فیس کرنے کا، اس لیے آپ پوری کہانی میں آبزرو کیجئے گا کہ پوری کہانی میں مارگریٹ نے کسی بھی جگہ پر کوئی پازیٹیو فزیکل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. چونکہ وہ پہلی دفعہ فیس کر رہی تھی اس وجہ سے وہ محض دیکھ رہی تھی، چونکہ اس کو نہیں پتا تھا کہ کس طرح کام کرنا، اس لیے وہ محض خاموش تماشائی بنی رہی. اب ہم ٹیکسٹ کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں. Look, look, there they are. یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی. جو مکمل کہانی ہے وہ اس سے پہلے بھی موجود ہے اور یہ جو ڈائلاگ تھا look, look, there they are، یہ اس کے خاوند کا تھا اور اس لیے اس سے پریویس یعنی یہ کہانی جو اس وقت ہم پڑھنے لگے ہیں یہ ایبریجڈ ورژن یعنی شارٹ فارم میں یہاں پر دی گئی ہے. مکمل تفصیلی کہانی بہت زیادہ لمبی ہے. Look, look, there they are. دیکھو دیکھو وہ رہیں. Out ran Margaret to join them. Looking at the hills. مارگریٹ ان میں شامل ہونے کے لیے ان پہاڑیوں کی طرف دیکھتی ہوئی باہر بھاگی. اب یہاں پہ سینٹنس کا سٹرکچر دیکھا جائے تو آؤٹ رین مارگریٹ ٹو جوائن دیم لکھا ہوا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ایک سبجیکٹ سے فکرے کا شروع کیا جاتا اس کو آؤٹ رین سے شروع کیا گیا ہے. آؤٹ کیم دا سرونٹس فرام دا کچن. باورچی خانے سے ملازمین بھی باہر نکلے. دے all stood and gazed. وہ سب کھڑے دیکھنے لگے. Over the rocky levels of the mountain was a streak of rust-colored air
locusts. Over the rocky levels of the mountains, पहाड़ियों की चोटियों की सतह पर, यानी पहाड़ की चोटी हुआ करती है, अगर वहां पर कोई 5-6 पहाड़ियां हैं तो तमाम की चोटियां यानी उनके जो ऊंचाई है वो एक जैसी है। अगर दूर खड़े होकर उन पहाड़ियों की चोटियों को देखा जाए तो यूं लगता है कि तमाम एक लेवल की, एक सतह की, एक ऊंचाई की हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन, उन पहाड़ियों की चट्टानी सतह पर, वॉज अ स्ट्रीक, एक धारी थी, एक पट्टी थी, ऑफ रस्ट कलर्ड, भूरे रंग की। रस्ट जंग को कहा जाता है और जंग का रंग ब्राउन हुआ करता है, इसीलिए उसको यहाँ पर भूरे रंग की कहा गया है। और कॉमे के बाद लिखा है लोकस्टस, यानी कि वो टिड्डियां थी, टिड्डी दल कहा जाता है। उस पहाड़ की चट्टानी सतह पर एक भूरे रंग की पट्टी थी जो टिड्डियां थी। इस सेंटेंस में रस्ट कलर्ड एयर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और यहाँ पे लफ्ज एयर हवा के माने में नहीं लिया जाएगा बल्कि फिजा के माने में लिया जाएगा। There they came, देखो वो आ गई। At once Richard shouted at the cook boy, फौरन रिचर्ड उस बावर्ची को पुकारने लगा, आवाज देने लगा या उस पर चिल्लाया। Old Stephen yelled at the houseboy, और बूढ़ा स्टीफन उस जो घर का मुलाजिम था उसको आवाज देने लगा। अब यहां पे जो दो किरदार ओल्ड स्टीफन और रिचर्ड आए हैं। रिचर्ड उसका खावंद है मार्गरेट का, जो रियल लाइफ में डॉरिस लेसन बजाते खुद है, और ओल्ड स्टीफन ये उसका फादर इन लॉ है। The cook boy ran to beat the old plowshare hanging from a tree branch, which was used to summon laborers at moments of crisis. The cook boy, वो बावर्ची, ran to beat the old plowshare, वो प्लाउशेयर कहते हैं पुराने जमाने में जो हल हुआ करते थे उसके एक टुकड़े को जो खराब हो चुका था दरख्त की शाख से लटका दिया गया और वो एक घंटी के तौर पर उसको बजाया जाता था कि अगर किसी किस्म की मुसीबत या आफत बहरान आ जाए तो उस वक्त उस प्लाउशेयर को, हल के फाले को जोर जोर से बजाया जाता, जिसकी आवाज सुन के वो तमाम गांव के लोग वहां पर जमा हो जाते। और उस कुक बॉय बावर्ची ने वही काम किया। बावर्ची लड़का दरख्त की शाख से लटकते हुए हल के फाले को बजाने के लिए भागा, which was used to summon laborers at moments of crisis। जो क्राइसिस SIS इस लफ्ज के एंड पर लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, अगर CRISES क्राइसिस लिखेंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। जो बहरान के वक्त, किसी मुसीबत के वक्त उन देहातियों को, लेबरर्स का वर्ड यहां पे यूज किया, कब इसको मजदूर कह लें या इसे किसान कह लें या देहाती कह लें, जो मजदूरों को बहरान के वक्त बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। द हाउस बॉय ran off to the store to collect tin cans, any old bit of metal। घर का मुलाजिम वो गोदाम की तरफ भागा ताकि वहां से लोहे के डिब्बे या कोई भी किसी किस्म के धात के टुकड़े हासिल किए जाएं। The farm was ringing with the clamor of the gong। और वो खेत, गोंग धाती एक तवे जैसी शक्ल का एक लोहे का पीस टुकड़ा हुआ करता है और उसको भी घंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है बजाने के लिए। घर का मुलाजिम गोदाम में लोहे के डिब्बे या किसी भी किस्म के धाती टुकड़े इकट्ठे करने के लिए भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गॉन्ग एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली। खेत इस वक्त क्लैमर, शोर शराबा, नॉइज, एको ऑफ द गॉन्ग, उस धाती घंटे के शोर से गूंज रहे थे। खेत उस धाती घंटे के शोर से गूंज रहे थे। एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट ऑफ द कंपाउंड, और वो देख सकते थे कि सारे मजदूर उस वक्त उस बड़े से अहाते में, सहन में जमा हो रहे थे। पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और वो पहाड़ियों की तरफ इशारा करते और पुरजोश अंदाज में शोर मचाते। फार्म धाती घंटों के बजने के शोर से गूंज रहा था और वो मजदूरों को बड़ी तादाद में अहाते से निकलते हुए पहाड़ों की तरफ इशारा करते हुए और पुरजोश अंदाज में चीखते चिल्लाते देख सकते थे। Soon they had all come up to the house। जल्द ही वो सब उस घर में जमा हो गए। यानी ये जो तीन किरदार अभी हमने ऊपर पढ़े,
एक मार्गरेट का किरदार आएगा, और उसके बाद रिचर्ड और स्टीफन, ये तीनों उस जगह के यूं कह लीजिए कि जागीरदार हैं, और ये वाइट यानी सफेद फार्म है, और इनके मातहत काम करने वाले स्याह फार्म यानी ब्लैक होंगे, और ये तीनों लोग उन तमाम मजदूरों को अहकामात जारी करेंगे। Soon they had all come up to the house, and Richard and old Stephen were giving them orders. Hurry, hurry, hurry. जल्द ही वो सब उस घर में जमा हो गए, और रिचर्ड और बूढ़ा स्टीफन उन्हें अहकामात जारी कर रहे थे, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इस सफ़े पर आने वाले अहम अल्फाज के मीनिंग्स हम देखते हैं। गेज्ड, मुसलसल गौर करना, देखना, घूरना। स्टेयर्ड, गैप्ड, वॉच्ड। रॉकी, चटानी। स्टोनी, रफ, पैबली। नेक्स्ट वर्ड, स्ट्रीक, धारी, पट्टी। लाइन, स्ट्राइप, बैंड। नेक्स्ट वर्ड, शाउटेड, पुकारा। येल्ड, क्राइड, स्क्रीम्ड। नेक्स्ट वर्ड, समन, बुलाया। कॉल, अराउज, असेंबल। नेक्स्ट वर्ड, क्राइसिस, बहरान, मुसीबत का वक्त। ट्रबल, डिफिकल्टी, डिजास्टर। नेक्स्ट वर्ड, क्लैमर, शोर शराबा। नॉइज, कमोशन, दिन। नेक्स्ट वर्ड, गॉन्ग, धाती, घंटा, जो जोर से घंटी बजाते हैं। बेल, हॉर्न, अलार्म। नेक्स्ट वर्ड, पोर आउट, निकलना, उमड़ आना। गश, फ्लड, स्ट्रीम। नेक्स्ट वर्ड, एक्साइटेडली, पुरजोश अंदाज में। थ्रिलिंगली, वार्मली, वायरली। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड ऑफ दे रैन अगेन, और वो दोबारा वापस भाग गए। द टू वाइट मैन विद देम, एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट could see the smoke of fires rising from all around the farmlands. और दोनों वाइट सफेद फार्म with them उनके साथ, and in a few minutes और चंद मिनट में मार्गरेट could see, मार्गरेट देख सकती थी, the smoke of fires, आग से उठते हुए धुएं को, rising from all around the farmlands, उन जरी जमीनों की हर तरफ से। और वो दोबारा वापस भाग गए। वो दोनों सफेद फार्म आदमी भी उनके साथ थे, और चंद मिनट के बाद मार्गरेट उन जरी जमीनों के इर्द गिर्द से आग के जलने से उठने वाले धुएं को देख सकती थी। Piles of wood and grass had been prepared there. लकड़ी और घास के ढेर वहां पर लगाए गए। There were 7 patches of bare soil, yellow color and pink, where the new mealies were just showing, making a film of bright green, and around each drifted up thick clouds of smoke. There were 7 patches of bare soil. खाली जमीन के 7 टुकड़े थे। खाली जमीन से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ वो जमीन थी, वहां पर किसी किस्म की फसल नहीं थी। इसको यूं समझ लीजिए कि वहां पर फसलें तो मौजूद थीं, लेकिन उनके इर्द गिर्द अभी तक ना तो टिड्डी दल का हमला हुआ था, और ना वहां पर आग लगाई गई थी जो टिड्डियों को दूर कर सकती थी। यानी अभी तक वो बिल्कुल खेत बिल्कुल ऐसे खाली थे जैसे वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन फसलें मौजूद थीं। खाली किताई जमीन के 7 टुकड़े थे, पीले रंग के और गुलाबी रंग के। यानी पीला और गुलाबी रंग ये जाहिर कारक, वहां पर फसल तो मौजूद थी। हो सकता है कि वहां पर उन फसलों के फूलों का रंग पीला हो और वहां पर गुलाबी रंग के फूल भी मौजूद हो, क्योंकि जमीन ना तो पीली होती है और ना गुलाबी हुआ करती है। Where the new mealies were just showing, जहां पर नई कोंपलें, मिलीज कोंपल को कहा जा सकता है। अगर ये मकई की फसल हो वहां पर उसको हम सिट्टे भी कह सकते हैं कि पीले रंग के सिट्टे खिल रहे थे। Where the new mealies were just showing, जहां पर नई कोंपलें अभी खिल रही थी। Making a film of bright green, जो हल्के सब्ज रंग की एक चादर से बना रही थी। यानी अगर हम फसलों के किनारे पर खड़े होकर दूर दराज मौजूद फसलों को देखें तो यूं लगता है कि जैसे किसने सब्ज रंग की चादर बिछा रखी हो। एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, और हर एक के गिर्द से धुएं के घने बादल से उठ रहे थे। खाली जमीन के पीले और गुलाबी रंग के 7 किताब थे, जहां मकई के नौखेज भुट्टे या सिट्टे अभी दिखाई दे रहे थे, और हल्के सब्ज रंग की एक चादर सी बिछ गई थी, और हर एक खेत के गिर से धुएं के घने बादल उठ रहे थे। They were throwing wet leaves onto the fires. Now
to make it acrid and black. अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि उसको मजीद, एक्रिड कहते तेज चुभने वाला, यानी कि अगर धुआं मौजूद हो तो धुआं आंखों में चुभता है, ताकि उस धुएं को चुभता हुआ किसी भी किस्म के हशरात हो या जानवर हो वो आग से और इस धुएं से जरूर डरते हैं। इसीलिए ये भी उन हशरातुल अर्ज को, उन लोकस्टस टिड्डी दल को भगाने के लिए पहले ही खेतों के इर्द गिर्द लकड़ियां जमा करके उनको आग लगा के धुआं बना रहे थे। और दूसरी बात जो इस लाइन में अहम है वो ये है कि ये गीले पत्ते या गीली शाखें क्यों फेंक रहे थे। उसकी वजह ये कि गीली शाखों या पत्तों को मुकम्मल तौर पर आग नहीं लगती, वो हल्की सी आग लग के बुझ जाती है, लेकिन उनसे धुआं मुसलसल निकलता रहता है। तो ये वजह थी गीले पत्ते फेंकने की। तो इसी लाइन का तर्जमा यूं बनेगा, अब वो आग पर गीले पत्ते फेंक रहे थे ताकि उससे स्याह और तंदोतेज बनाया जाए। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स। मार्गरेट पहाड़ियों की तरफ देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग। अब एक लॉन्ग लंबा, लो निचली सतह का क्लाउड बादल एडवांसिंग पेश कदमी कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। यानी हकीकत में ये बादल तो नहीं था, लेकिन ये वही टिड्डी दल थे जो एक बादल की शक्ल में गौल दर गौल बहुत बड़ी मिकदार में आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अब एक तवील निचली सतह का बादल पेश कदमी कर रहा था। रस्ट कलर स्टील अभी भी भूरे रंग का, स्वॉलिंग फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड आगे की जानिब एंड आउट और अतराफ में फैल रहा था। स्वॉलिंग मीन्स यहां पर फैल जाना। एज शी लुक्ड, जब उसने देखा, यानी शी यहां पे मार्गरेट है। मार्गरेट ने पहाड़ियों का मुशाहिदा किया तो उसने देखा कि एक तवील निचली सतह का बादल पेश कदमी कर रहा था जो अभी भी भूरे रंग का था, जो आगे की तरफ और अतराफ में फैल रहा था। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फोन बज रहा था। नेबर्स क्विक क्विक देयर कम द लोकस्टस, हमसायों जल्दी करो, टिड्डियों का हमला हो गया। ओल्ड स्मिथ had his crop eaten to the ground. बूढ़े स्मिथ की फसल खाई जा चुकी थी, यानी जमीन बोस हो गई थी। बूढ़े स्मिथ की फसल जमीन बोस हो चुकी थी। क्विक गेट योर फायर स्टार्टेड, जल्दी करो, अपनी आग जला लो। For of course, while every farmer hoped the locusts would overlook his farm and go on to the next, it was only fair to warn each other. One must play fair. जल्दी करो, अपनी आग जला लो। For of course, क्योंकि बिलाशुबा, while every farmer hoped, हर किसान ने ये उम्मीद की। हकीकत तो यही है कि जितनी मेहनत मुशक्कत करके फसलें उगाई जाती हैं और अगर उन पर किसी किस्म की कलामिटी आफत आ जाए, जैसे कि टिड्डी दल है, तो उस मेहनत मुशक्कत करने वाले किसान की जान वही निकल जाती है कि उसकी कई महीने की मेहनत लम्हों में आके तबाह बर्बाद हो जाए। इसीलिए हर किसान उम्मीद कर रहा था कि किसी तरह से उसका खेत बच जाए। Well, every farmer hoped, जब हर किसान ने उम्मीद लगाई, the locusts would overlook his farm, कि टिड्डियां उनका खेत ओवरलुक कर दें, छोड़ दें, नजरअंदाज कर दें, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और अगले खेत में चली जाएं। बिलाशुबा हर किसान को उम्मीद थी कि टिड्डियां उसका खेत नजरअंदाज कर दें और अगले खेत में चले जाएं। इट वॉज ओनली फेयर टू वॉर्न ईच अदर, ये अच्छी बात थी कि एक दूसरे को आगाह किया जाए, खबरदार किया जाए। वन मस्ट प्ले फेयर, हर किसी को मुनसिफाना रवैया अपनाना चाहिए। एवरीवेयर 50 miles over the countryside, the smoke was rising from the myriads of fires. 50 मील पर मुहित उस देहाती इलाके के हर तरफ आग के अलाव जलाए गए और उनसे धुआं उठ रहा था। जो myriads वर्ड लिखा गया, इट मीन्स के ढेर लगाए गए थे, यानी कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में। 50 मील पर मुहित उस देही इलाके पर हर जगह आग के अलाव रोशन किए गए जिनसे धुआं उठ रहा था। मार्गरेट आंसर्ड टेलीफोन कॉल्स, मार्गरेट आने वाले फोन का जवाब देती। एंड बिटवीन कॉल्स शी स्टूड वॉचिंग द लोकस्टस, और फोन के दौरान वो खड़ी उन टिड्डियों को देखती रहती। द एयर वॉज डार्कनिंग, फिजा तारीक हो रही थी।
A strange darkness, एक अजीब तारीकी थी, for क्योंकि the sun was blazing, सूरज तो तप रहा था, यानी ये तकरीबन दोपहर का वक्त था, सूरज मुकम्मल आबोताब में चमक रहा था, रोशनी मौजूद थी, लेकिन टिड्डियां इतनी ज्यादा तादाद में फिजा में मौजूद थीं कि उन्होंने सूरज की रोशनी को रोक लिया, यूं जैसे कि बादल सूरज की रोशनी को रोक लेते हैं और फिजा तारीक हो जाती है, बिल्कुल वैसा मंजर था। It was like the darkness of a wildfire. ये घास के मैदान में लगने वाली आग की तारीकी थी। wildfire कहते जब घास के मैदान में या सरसब्ज शादाब मैदान में आग लग जाए और वो मुकम्मल आग ना हो लेकिन धुआं ही धुआं, बिल्कुल वैसा मंजर था। When the air gets thick with smoke, जब फिजा धुएं से भारी हो जाए। एक अजीबोगरीब तारीकी थी क्योंकि सूरज चमक रहा था। ये घास के मैदान में लगने वाली आग की तारीकी की मानी थी जब फिजा धुएं से भारी हो जाए। इस सफ़े पर मौजूद अहम अल्फाज के मीनिंग्स देखते हैं। फार्मलैंड ज़रई ज़मीन, फील्ड फार्म लैंड, फायर ढेर, कलेक्शन हीप स्टैक। नेक्स्ट वर्ड पैचेस किताब टुकड़े, प्लॉट्स एरिया लॉट। नेक्स्ट वर्ड मिलीज मकई के भुट्टे सिट्टे, मेज मिलेट। नेक्स्ट वर्ड है फिल्म पर्थ, लेयर शीट कवरिंग। नेक्स्ट वर्ड ड्रिफ्टेड बुलंद होना, रोज फ्लू फ्लोटेड। नेक्स्ट वर्ड एक्रिड तुंद तेज तेज बनाना, बिटर शार्प पंजेंट। नेक्स्ट वर्ड स्पेल फैलना, स्प्रेड एक्सपैंड। नेक्स्ट वर्ड ओवरलुक नजरअंदाज करना, इग्नोर निग्लेक्ट डिसरिगार्ड। नेक्स्ट वर्ड फियर मुनसिफाना, गुड सिंसियर सुटेबल। नेक्स्ट वर्ड वॉर खबरदार करना तंबीह करना, इनफॉर्म टेल थ्रेट। नेक्स्ट वर्ड मिरियड्स कसीर, काउंटलेस सेवरल वेरियस। नेक्स्ट वर्ड ब्लेजिंग दहकना, फ्लेमिंग बर्निंग फ्लैशिंग। नेक्स्ट वर्ड वेल्ट मैदान इलाका, ग्रासलैंड वुड्स फॉरेस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सनलाइट कम्स डाउन डिस्टॉर्टेड, सूरज की रोशनी डिस्टॉर्टेड मसक शुदा अंदाज में नीचे आती, चूंकि टिड्डियां मौजूद थी फिजा में, इसलिए जहां पर टिड्डियां ना होती सिर्फ वहीं से सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंचती। अ थिक हॉट ऑरेंज, तेज नारंगी रंग की, सूरज की रोशनी मसक शुदा शक्ल में तेज नारंगी रंग की शक्ल में नीचे आती। ऑपरेसिव इट वाज टू विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म। ऑपरेसिव नाकाबिले बर्दाश्त, यानी जिसको बहुत ज्यादा बोझल कहा जा सकता है, ये नाकाबिले बर्दाश्त थी। विद द हैवीनेस ऑफ अ स्टॉर्म, और तूफान की शिद्दत से भी ये बोझल थी। द लोकस्ट्स वर कमिंग फास्ट, वो टिड्डियां तेजी से आ रही थीं। नाउ हाफ द स्काई वाज darkened, अब तकरीबन आधा आसमान तारीक था। Behind the reddish fields in front, which were the advance guards of the swarm, the main swarm showed in dense black cloud, reaching almost to the sun itself. Behind the reddish fields सुर्खी माइल पर्दे, उनके पीछे in front सामने मौजूद सुर्खी माइल पर्दों के पीछे, यानी जो टिड्डियां आ रही थी उनमें जो सबसे आगे टिड्डियां मौजूद थीं वो सुर्खी माइल थीं और उनके जो पीछे टिड्डियां थीं वो तकरीबन ब्लैक कलर की थीं। सामने मौजूद सुर्खी माइल पर्दों के पीछे विच वर द एडवांस गार्ड्स, और सबसे आगे वाले दस्ते को क्या कहा गया? हरावल दस्ता। द एडवांस गार्ड्स ऑफ द स्वाम, उस बड़े गौल का हरावल दस्ता आगे मौजूद था। द मेन स्वाम शोड इन डेंस ब्लैक क्लाउड, और मरकजी ग्रोह पीछे मौजूद बहुत बड़ी तादाद में जो टिड्डियां थीं वो घने स्याह बादल की तरह दिखाई देती, रीचिंग ऑलमोस्ट टू द सन इटसेल्फ, ऐसे जैसे वो बजाते खुद सूरज तक पहुंच गई हों। सामने की जानिब सुर्खी माइल पर्दों के पीछे जो उस बड़े गौल का हरावल दस्ता था और वो मरकजी ग्रोह गहरे स्याह बादल की तरह दिखाई देता और वो बजाते खुद सूरज तक पहुंच गया हो। मार्गरेट वॉज वॉन्डरिंग व्हाट शी कुड डू टू हेल्प, मार्गरेट हैरान हो रही थी कि वो मदद के लिए क्या कर सकती थी। जैसे कि मैंने पहले बताया, इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मार्गरेट। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, देयरफॉर शी वॉज साइलेंट। मार्गरेट हैरान और परेशान थी कि वो क्या मदद कर सकती थी।
She did not know, वो नहीं जानती थी. Then up came old Stephen from the lands, और फिर खेतों से बूढ़ा स्टीफन आया. We are finished, Margaret, finished. हम खत्म हो गए, मार्गरेट खत्म हो गए, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया. Those beggars can eat every leaf and blade of the farm in half an hour. अब वो बूढ़ा स्टीफन बैगर्स किसको कह रहा? उन टिड्डियों को. वो भिखारी यानी वो टिड्डियां आधे ही घंटे में खेतों से हर छोटे बड़े पत्ते को खा सकती हैं. जो लफ्ज ब्लेड यूज किया गया, इसका मतलब घास का तिनका या ऐसे पत्ते जो जिनके लंबाई ज्यादा और चौड़ाई बहुत कम हुआ करती है, जैसे घास के तिनके होते हैं, और बाकी जैसे दरख्तों के पत्ते उनकी चौड़ाई और लंबाई तकरीबन बराबर हुआ करती है. इसलिए दोनों अल्फाज लीफ एंड ब्लेड लिखा गया. वो भिखारी आधे घंटे में हर खेतों पर से हर किस्म के छोटे बड़े पत्ते को खा सकते हैं. एंड इट इज ओनली अर्ली आफ्टरनून, अभी तो दोपहर का आगाज है. इफ वी कैन मेक एनफ स्मोक, अगर हम बहुत ज्यादा धुआं बना सकें, मेक एनफ नॉइज, ज्यादा शोर मचा सकें, टिल द सन गोज डाउन, हत्ता कि सूरज गरूब हो जाए, दे विल सेटल समवेयर एल्स, परहैप्स, तो शायद वो किसी और जगह पर चली जाएं. वो भिखारी आधे घंटे में खेतों से हर छोटे बड़े पत्ते को खा सकते हैं, और अभी तो दोपहर का आगाज है. और अगर हम काफी मिकदार में धुआं बना सकें, बहुत ज्यादा शोर मचा सकें, हत्ता कि सूरज गरूब हो जाए, तो शायद वो किसी और जगह पर चली जाए. एंड देन गेट द कैटल गोइंग, इट्स अ थर्स्टी वर्क दिस, और फिर कोशिश जारी रखो, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो करते रहो. और वो क्या कर रहे हैं? आग जला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं. और फिर कोशिश जारी रखो, यानी आग जलाए रखो. ये मेहनत तलब काम है. आज तक का हमारा लेसन यहीं पे खत्म होता है. बाकी लेसन